I am Vijay Jain from Paras Printers. I am the owner of the company and he is my son Kshitij. Hello, I am MD of the company. I take care of operations and other parts. I started my journey in 1980 with a sum of rupees 100 only, and I was supplying stationery to banks and offices. Then I gradually shifted to printing because there was a requirement of printing jobs to the company for which I was doing stationery supply. And I found the interest in printing and I stopped stationery business and shifted completely to printing. And previously I was getting the jobs done from outside presses. And in 1999 I made up my mind to set up my own business because it was getting difficult to get the job done at the competitive rate from the other presses. So in 1999, I planned one dominant 4-color, and from there I was in complete printing business. Gradually, I added another dominant 4-color in 2003 or 4, and in 2008 I shifted my business from Daryaganj to Patparganj. That was an additional unit, and since the demand of printing was growing and I was not capable to meet the jobs in time, so I called Mr. Sangam Khanna to get me one Komori press. And he proposed to introduce Anthron 429, the new machine. Actually, I had seen this machine in IPEX, London in 2010. So I never knew I will be one of the beginners in India to buy this machine. And since then I have not turned back and I am adding Anthron. Then in 2015 I added another Anthron. Then we had planned another Komori GL437, but due to COVID we had to shift our plans. And now we have added another press in 2024, GL437. So now we have another machine to our another equipment. So we can meet the demand of our customers, growing demand of our customers. Also, we are doing work for many MNCs and corporate clients. So we always have to keep up with the requirement of the market. And now let's see what lies ahead. In between we added another 2-color that was also Komori. So today we have got 4 Komoris, and now we are planning for another 5-color coater. Let's see in which direction we go. In 2011 में हमारा काम थोड़ा बढ़ रहा था, हमारे पास कुछ MNCs और मल्टीनेशनल्स ऐड हो रहे थे, तो वो उनके काम जो क्वालिटी थी और जो टाइम पीरियड था वो डोमिनेट मीट नहीं कर पा रही थी. तो मैंने संगम जी को फ़ोन करा. मैं उनको IPEX 2010 इंग्लैंड में मिला था. मैंने वहाँ एंथ्रॉन देखी थी. तो उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिगनर होऊंगा इंडिया के अंदर एंथ्रॉन लेने के लिए. तो उन्होंने आके मुझे प्रपोज करा एंड परसुएड करा कि भाई जैसा मेरा बिजनेस है तो आई शुड गो फॉर ए न्यू मशीन. उससे पहले हम सिर्फ सेकेंड हैंड मशीन्स के ऊपर ही थे, बट थैंक्स टू हिम कि उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया और हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और हम नई मशीन्स की तरफ चले गए. फिर 2015 में हमने एक और एंथ्रॉन ऐड की क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, और सिंस वी वर द पायनियर्स इन पटपड़गंज तो हमारे पास काम थोड़ा ज़्यादा हो गया. तो उस वजह से 2015 में मैंने एक बार एंथ्रॉन ऐड करी. उसके बाद क्षितिज ने ज़्यादा टेक ओवर करा, तो वही बताएगा आगे का. 2015 के बाद वी वर कॉन्टिन्यूसली एडिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड MNCs. तो हमारी डिमांड क्वालिटी को लेके और प्रोडक्शन को लेके बढ़ती जा रही थी. हमने इस बीच पोस्ट प्रोडक्शन की भी काफ़ी सारी मशीनें ऐड करी. 2019 में हमें रियलाइज़ हुआ कि नाउ टाइम है कि हमें बड़ी मशीन की तरफ जाना चाहिए. तो 2019 में हमने सोचा था GL437 हम जो है इंस्टॉल करेंगे, बट जैसे ही हमारी प्लानिंग चल रही थी उसी दौरान कोविड हिट किया और हमारे प्लान्स जो है 2-3 साल के लिए पोस्टपोन हो गए. एंड फाइनली 2023 में फिर हमने दोबारा बात करी और हमने GL437 के लिए ऑर्डर किया, जो कि अब 2024 से चालू है. एंड वी आर सेटिस्फाइड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इससे प्रोडक्शन को और 2x 3x करें एंड हमारी जर्नी कॉन्टिन्यूसली चलती रहे.
2011 में जब हमारी पहली एंथ्रॉन आई तो हम लोगों को कमोरी ने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस से स्पेशल ट्रेनिंग दी। हमने स्टाफ भी हायर किया ताकि हमारे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे को स्पेशली उन्होंने जापान भी भेजा था ताकि हम ये देख सकते हैं कि मशीनें किस तरह बनती हैं, किस तरह आगे चीज़ें होती हैं। वो भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया। 2015 में जब हमने डिसीजन लिया सेकंड एंथ्रॉन लेने का, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमें कॉन्टीन्यूसली अच्छा सपोर्ट मिलता रहा कमोरी से। तभी हमने डिसाइड किया कि एक दूसरी मशीन भी हम कमोरी के लेंगे। कमोरी इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा कि हमारे क्लाइंट्स काफ़ी खुश थे क्वालिटी को लेके, क्योंकि मार्केट का एक सिनेरियो था कि सारी मशीन्स यहाँ पे सेकेंड हैंड होती थी, तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी प्रिंटिंग को लेके, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम या टाइम पे ना मिल पाना, प्रोडक्शन प्रॉब्लम। जब हमने कमोरी को 2-3 साल यूज़ किया तो हमें एक्चुअल पावर समझ आई। हम एक दिन में 60 to 80 सेट्स भी निकालने में सक्षम होने लगे थे। तो हमारे क्लाइंट्स काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको टाइम से जॉब मिल पा रही थी और क्वालिटी की कोई इशू होता नहीं था। रेगुलर मेंटेनेंस हम कराते हैं मशीन्स का अप टू डेट रहने के लिए, तो हम काफ़ी खुश हैं कमोरी की सर्विसेज से। 2015 में सेकंड कमोरी इंस्टॉलेशन के बाद हमने कुछ फीडबैक भी दिए टीम को, इंजीनियर्स को। कुछ चीज़ें में हमें लगा कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो होल हार्टेडली कंपनी ने एक्सेप्ट किया। जापान से भी कुछ लोग आए, उन्होंने सर्वे किया हमारे यहाँ, और फिर आने वाली मशीन्स में उन्होंने वो चेंजेस भी इम्प्लीमेंट किए। तो हम काफ़ी खुश थे कि जो हमने फीडबैक दिया उन्होंने कमोरी ने उसको एक्सेप्ट किया और उस हिसाब से चेंजेस किए। और सपोर्ट में भी जो जो चीज़ें हमें समझ आती हैं, जहाँ जहाँ हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं, उन पे टाइमली हो जाता है, टाइमली एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन हैम्पर नहीं करती और हम टाइमली प्रिंट करते रहते हैं। जैसा कि हमारा टारगेट है कि हम अपनी सेल्स को, टर्नओवर को 2x कर लें विद इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर, तो उसके लिए कमोरी ने बहुत हेल्पफुल हुआ है। और अभी भी हमारे कस्टमर्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि उनको टाइमली मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम उनको कम्पिटिटिव रेट्स भी दे पा रहे हैं। उसकी इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारे को कस्टमर एड ऑन भी हुआ है, क्योंकि हमें उन्होंने रेफ़र भी करा किसी और जगह के लिए कि भाई आप यहाँ का भी काम कर सकते हैं। तो दैट वे कमोरी हेल्प अस अ लॉट।